Hello, dear students. Welcome to our today's class. And today we are going to finish this chapter number 14, that is substances in common use. Okay, students, so I hope all of you have watched the earlier tutorial videos. Yes, if you haven't watched any of the tutorial video, please go and watch that first. Because as I used to say in every video that which is connected to each other, okay, every video is connected to each other, and if you didn't watch the last video, you will not understand the today's topic. Okay, so everything is connected to each other, so you have to watch each and everything. Okay, be with your textbook and mark the important points. Okay, so without wasting time, let's revise what we have learned in our last class. Okay, so in our last class, we have seen some characteristics of three rays. What are the three rays which we have learned? That is alpha ray, gamma ray, and beta ray. Okay, so these are the three rays which we have already learned in our last class. We have seen the characteristics of these three rays. Okay, we have seen its nature, its mass, its charge, velocity, deviation, then its penetration power, ionization power, and power to produce fluorescence, means power to produce light कितना होता है, that everything we have already seen. Okay, so you just remember the important terms: nature, mass, charge. Okay, deviation is important, ionization power, okay, power to produce fluorescence. This everything is very important. Okay, then we have seen the uses of radioactive isotopes. So this is used in various kinds of industries. Okay, it is used in like medical industry, then it is used in agriculture and so on. Okay, so these are the uses of radioactive isotopes which we have already learned. Then we have seen hazards of radioactive substances and radiation. As you all know that the radioactive radiation is very dangerous. Okay, it is very dangerous to skin also. It can cause skin cancer. Okay, so these radiations have harmful effect on our body. Okay, yes, then we have seen some chemical substances in our day-to-day life. Okay, we use the different kinds of chemical substances in our day-to-day life. We have already seen that food colors and essence. Yes, nowadays so many types of food colors are used to attract the people's attention, to decoration of different fruits. Okay, different kinds of clothes, the different kinds of food colors we are talking about. So here you can see these are the different colors which are getting used to attract the people's attention. Okay, sometimes these food colors are harmful also. Okay, so consumption of this, we have to consume this in appropriate manner. बाहर का ज़्यादा कुछ खाने का नहीं है, जो हमारी मदर बनाती है हमारे लिए, that is very delicious and that is good for our health. Okay, so we should avoid the different kinds of sweets and whatever we used to eat from outside. ठीक है, and already we have seen the artificial food colors and its effects. Okay, so till this we have learned in our last class. Now this is very easy, that is dye मतलब color. Okay, different color. dye मतलब क्या होता है, colors. Okay, so the colored substance which on applying to an article imparts the color to the article is called a dye. ओके, फॉर एग्ज़ाम्पल अभी हम डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्लोथ्स देखते हैं, बहुत ऐसे कलरफुल कपड़े, डिफरेंट काइंड्स ऑफ कलरफुल क्लोथ्स, डिफरेंट काइंड्स ऑफ कलरफुल पॉट्स एंड द डेकोरेशन काइंड ऑफ थिंग्स. ओके, सब कलरफुल हो गए, सब लाइफ ही कलरफुल हो गई. सो लाइक दैट. तो ये कलर कहाँ से आते हैं, इसको क्या बोलते हैं, डाई. ओके, तो ये जो है this different kinds of dye substance gets added into the things which we want to color. okay, for example ऐसे होली के टाइम पे different colors यूज़ करते हैं. ओके, तो अभी
अभी से क्या किया है, होली में क्या यूज़ नहीं करने का, वाटर नहीं यूज़ करने का, कलर नहीं यूज़ करने का, नेचुरल होली वी हैव टू सेलिब्रेट। तो ये ट्रेडिशन आ रहा है। बट पहले बहुत और अभी भी बहुत सारे ऐसे कलर यूज़ करते थे एंड करते हैं। तो वो कलर को क्या बोलते हैं, इट इज़ कॉल्ड एज डाई। ओके, अ डाई इज़ सोल्यूबल इन वाटर एंड इट इज़ इनसोल्यूबल इन ऑयल। ओके, तो वो वाटर में सोल्यूबल है एंड इनसोल्यूबल है किस में, ऑयल में। Plants are the main source of color for penetrating a natural dye. ओके, प्लांट भी बहुत सारे कलर से शोभित है। लाइक यू कैन सी द लीव्स हैविंग ग्रीन कलर, देन द फ्लावर्स हैविंग रेड कलर एंड सो ऑन, पिंक कलर. नाउ द प्लांट्स आर ऑल्सो गेटिंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ कलर. Okay, so roots, leaves, flowers, bark, fruits, seeds, fungus, pistil are used for making dye. तो ये used होता है for making this kind of colors, for making the dye. Yes, तो in Kashmir a very good dye is made from saffron, which is used to dye fibers from which saris, shawls and dresses are made. Okay, तो कश्मीर में क्या होता है, बहुत अच्छे साड़ीज़, शॉल्स एंड ड्रेसेस जो है वो फैब्रिक उनका बहुत अच्छा रहता है। तो उसमें क्या यूज़ होता है, सैफ़रॉन यूज़ होता है। ठीक है, तो हियर यू कैन सी दिस आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ शॉल्स आर हियर. ओके, सो दिस गिव्स अ वेरियस काइंड्स ऑफ अटेंशन, दिस अट्रैक्ट्स पीपल्स अटेंशन एंड हमारा जो फेवरेट कलर है वो हम लेते हैं। तो वो कलर ऐड करने का काम कौन करता है, डाई. Okay, artificial dyes are classified into many types on the basis of their chemical properties and solubility, and petroleum products and minerals they are used in these dyes. Okay, तो basically dyes मतलब क्या, to give color. तो what are the uses of dyes? Okay, they are used for coloring cloth and hair. अभी तो नावडेज यू कैन सी, हम जब रास्ते पे चलते हैं तब हमें बहुत ऐसे अतरंगी कुछ भी ऐसे कलर के हेयर बनाए हुए लोग हमें दिखाई देते हैं। तो वो जो कलर है वो उनका नेचुरल कलर नहीं रहता है, वो कलर ऐड करते हैं अपने हेयर को. ओके, तो डाई किस में यूज़ होता है? फॉर coloring the hair, clothes. Then fluorescent colors are used to make street boards that are visible at night. फ्लोरोसेंट मतलब क्या? लाइट कलर्स, जिसमें से लाइट पेनिट्रेशन होता है. तो वो कहाँ पर यूज़ होता है? आपने देखे होंगे नाइट के टाइम पे बहुत सारे ऐसे बोर्ड रहते हैं रास्ते पे, तो उसमें शाइन करते हुए हमें कलर, डिफरेंट कलर्स दिखाई देते हैं. तो उसमें क्या यूज़ होता है? फ्लोरोसेंट कलर्स. ओके, डाइज आर यूज टू पॉलिश लेदर, शूज़, पर्सेस, चप्पल्स. ओके, तो सब में डाई यूज़ होता है. जो भी हम मटेरियल लेते हैं, इट एवरीथिंग फ्रॉम अ क्लोथ टू अ हेयर, एवरीथिंग इज़ हैविंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ कलर्स मेड फ्रॉम कलर. ओके, तो हम उसको कलर ऐड करते हैं. नाउ व्हाट आर इट्स एडवर्स इफेक्ट? इफेक्ट भी तो है. सो डाइंग हेयर, ओके, can have adverse effect like hair fall, damage to hair texture, burning of skin, adverse effects on eyes etc. तो देखो कितने सारे क्या है इसमें इफ़ेक्ट भी है. लिपस्टिक कंटेन अ डाई नेम्ड कार्माइन. इट डज नॉट अफेक्ट द लिप्स बट कॉजेज स्टमक डिसऑर्डर. ओके, तो ये किसी को पता नहीं था. नाउ पे अटेंशन टुवर्ड्स दिस. लिपस्टिक ऑल्सो कंटेन्स अ डाई. ओके, excessive use of plants for making natural dyes result in deterioration of the environment. तो environment के लिए भी ये बहुत सारा affect करता है. Okay, so this is about your dye. Now here you can see artificial colors. artificial colors जहाँ पे हम example देते हैं रंग पंचमी, होली का, जहाँ पे हम different artificial color यूज़ करते हैं. Okay, हम हमारे हाउस को डेकोरेशन करने के लिए, पेंटिंग के लिए डिफरेंट आर्टिफिशियल कलर्स यूज़ करते हैं. द रेड कलर यूज़ ऑन रंग पंचमी इज़ वेरी डेंजरस. तो होली के टाइम पे कभी भी रेड कलर नहीं यूज़ करने का. इट कंटेन्स हाई प्रपोर्शन ऑफ मर्क्यूरी एंड इट पोजेस अ रिस्क लाइक ब्लाइंडनेस, स्किन कैंसर होता है, अस्थमा होता है,
ईचिंग ऑफ द स्किन होता है, परमानेंट ब्लॉकिंग ऑफ स्वेट पोरस एक्सेट्रा। तो देखो ऐसे सब रिएक्शंस होते हैं हमारे स्किन पे। इट इज़ वेरी डेंजरस, देयरफॉर इट इज़ नेसेसरी दैट आर्टिफिशियल कलर्स आर यूज्ड केयरफुली। तो हमें ये कलर कैसे यूज करने हैं, वेरी वेरी केयरफुली। ओके, यस। नाउ डिओडोरेंट, डिओडोरेंट क्या होता है? ओके, नावडेज बहुत सारे ट्रेंडिंग आए हैं कि हम जहाँ भी जाते हैं डिओडोरेंट सेंट लगा के ही निकलते हैं घर से। तो हियर यू कैन सी बॉडी ओडर इज़ कॉज्ड बाय बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन ऑफ द स्वेट। तो हमारी बॉडी में स्वेटिंग होता है और दिस बिकॉज ऑफ दैट स्वेटिंग क्या होता है, बॉडी ओडर इट गेट्स फॉर्म्ड। तो अ डिओडोरेंट इज़ यूज टू प्रिवेंट दिस ओडर। तो इसलिए हम क्या लगाते हैं, सेंट लगाते हैं, डिफरेंट काइंड्स ऑफ डिओडोरेंट लगाते हैं। एवरीबडी लाइक्स अ फ्रेग्रेंट डिओडोरेंट टू रिमेन फ्रेश द होल डे। एंड नावडेज आप देखोगे टीवी में भी बहुत सारे एड्स आते हैं, तो इसकी वजह से क्या होता है, हमारा अट्रैक्शन उसकी तरफ जाता है, राइट। डिफरेंट काइंड्स ऑफ एड्स वी यूज टू सी एंड वी वॉन्ट दैट सेंट बॉटल। ओके, yes, तो it contains what? It contains methyl, ethyl, propyl, benzyl and butyl and also consists of alcohol in large proportion। देखो कितना सारा इसमें होता है। आपके घर में अगर सेंट की बॉटल होगी तो आप देखो इसके पीछे क्या क्या केमिकल्स, उसमें क्या क्या मटेरियल ऐड किया है। फ्रॉम दैट यू विल कम टू नो। एल्यूमिनियम कंपाउंड्स एंड सिलिका आर ऑल्सो यूज्ड। ओके, तो डिफरेंट काइंड्स ऑफ डिओ होते हैं, डिफरेंट काइंड्स ऑफ डिओ होते हैं। हियर यू कैन सी ऑर्डिनरी डिओ, इट कंसिस्ट ऑफ व्हाट, अ स्मॉलर प्रपोर्शन ऑफ एल्यूमिनियम, इट डिक्रीजेज द ओडर ऑफ द स्वेट। ओके, तो ये यूजफुल है। नाउ एंटीपर्स्पिरेंट डिओ, दिस डिक्रीजेज द एक्सटेंट ऑफ स्वेटिंग and it consists of 15% of aluminium chlorohydrate. It clogs the sweat pores on the skin। तो वो क्या करता है, स्वेटिंग को डिक्रीज करता है। नाउ क्लिनिकल डिओ, सम पीपल स्वेट हैविली एंड इट इज़ हार्मफुल इफेक्ट्स ऑन द स्किन। सबको, बहुत सारे लोगों को ऐसे होता है कि वो बहुत ज़्यादा स्वेटिंग करते हैं, तो वो स्किन के लिए भी हार्मफुल है। ओके, क्लिनिकल डिओ इज़ मेंट फॉर सच पीपल। तो वो क्या यूज़ कर सकते हैं, क्लिनिकल डिओ। कभी कभी डॉक्टर्स भी ऐसे कुछ लिख के देते हैं जो हमें बाय करना होता है टू अवॉइड एक्स्ट्रा स्वेटिंग। इट कंसिस्ट ऑफ 20 to 25% ऑफ एल्यूमिनियम एंड इट इज़ यूज ड्यूरिंग द नाइट। तो इसके इफ़ेक्ट भी हैं, जैसे ये यूज़फुल है वैसे हार्मफुल भी है। एल्यूमिनियम, zirconium compounds are the most harmful chemicals in the deodorant. Deodorant disorder like headache, asthma, respiratory disorder, heart disease are likely to occur without our knowledge. Okay, तो ये सब भी होता है। तो हमें जो भी हम यूज़ करते हैं अपने लाइफ में सब प्रिकॉशन लेके ही यूज़ करना है। There is a possibility of various skin disorder and the skin cancer ड्यू टू द एल्यूमिनियम क्लोरोहाइड्रेट। तो एल्यूमिनियम क्लोरोहाइड्रेट इज़ वेरी वेरी डेंजरस। तो हमें क्या करना है, केयरफुल रहना है रिलेटेड टू आवर स्किन। ठीक है, सो दिस इज़ अबाउट डिओ। ओके, नाउ टेफ्लॉन। टेफ्लॉन क्या होता है, टेफ्लॉन इज़ यूज्ड फॉर कोटिंग कुकिंग यूटेंसिल्स एंड इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट टू अवॉइड स्केचिंग। तो वो कहाँ पे यूज़ करता है, यूटेंसिल्स पे, जो बर्तन होते हैं वहाँ पे, एंड इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट्स में, टू अवॉइड स्टिचिंग, ओके, स्टिकिंग। तो ये मोस्टली यहाँ पे यूज़ होता है। इट इज़ द पॉलीमर ऑफ टेट्राफ्लूरोइथिलीन एंड इट्स केमिकल नेम इज़ पॉलीटेट्राफ्लोरोइथिन। देखो ये इसका फॉर्मूला है C2F4। तो टेफ्लॉन का कोटिंग यूज़ होता है डिफरेंट काइंड्स ऑफ यूटेंसिल्स एंड इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट। नाउ उसके प्रॉपर्टीज़ क्या है, तो द एटमॉस्फेयर एंड द केमिकल सब्सटेंस हैव नो इफेक्ट ऑन टेफ्लॉन। ओके, तो हम बाहर भी जाते हैं, बाहर भी ये यूज़ करते हैं, धूप में लेके जाते हैं, तो उसका कोई भी इफ़ेक्ट नहीं होता। नाइदर वाटर नॉर ऑयल विल स्टिक टू टेफ्लॉन कोटेड आर्टिकल्स।
कुछ भी इस पर स्टिक नहीं हो सकता। हाई टेम्परेचर डू नॉट अफेक्ट टेफ्लॉन एज इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज 327 डिग्री सेल्सियस एंड टेफ्लॉन कोटिंग आर्टिकल्स आर वेरी इजी टू क्लीन। तो जिसमें टेफ्लॉन का कोटिंग रहता है, लेयर रहता है, तो वो बहुत इजी तरह से क्लीन होते हैं। यूजेस: टेफ्लॉन इज़ अ प्योर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, therefore teflon cladded wires and parts are used in high technology electronics instruments. It is also used for non-stick kitchenware. It is the colored metal sheets of two-wheelers and four-wheelers are given a teflon coating to protect them from damage due to high temperature and rain. जैसे कि यहाँ पे दिखाई देता है, कार में ये टेफ्लॉन जो है उसका कोटिंग दिया है, तो वो यूज़ होता है so that the plate or the sheets whatever is there material it doesn't get affected through high temperature and rain. Okay, yes, now different kinds of और भी कोटिंग होते हैं। ये है पाउडर कोटिंग। तो पाउडर कोटिंग इसमें क्या रहता है? इट इज़ अ मेथड ऑफ अप्लाइंग अ लेयर हार्डर देन अ पेंट ऑन द सर्फेस ऑफ आयरन ऑब्जेक्ट टू प्रिवेंट रस्टिंग। तो रस्टिंग होता है, तो रस्टिंग से प्रिवेंट करने के लिए क्या यूज़ करते हैं? पाउडर कोटिंग। ओके, जहाँ पे ये देखो, तो इसमें क्या होता है? अ पॉलीमर रेजिन, अ पिगमेंट एंड सम अदर इंग्रेडिएंट्स आर मिक्स्ड, कूल्ड, ग्राउंड इनटू अ यूनिफॉर्म पाउडर एंड दिस पाउडर इज स्प्रेड ऑन द पॉलिश्ड मेटल। जहाँ पे ऐसे दिखाई देता है वैसे ये स्प्रेड होती है। ओके, a chemical reaction occurs in the layer resulting in the formation of long cross-linked polymer chain। यहाँ पे बेसिकली यही ध्यान में रखने का है कि पाउडर कोटिंग यूज होता है टू अवॉइड रस्टिंग फ्रॉम द रस्टिंग ऑफ मेटल। ओके, यस। देन द सेकेंड मेथड क्या है? एनोडाइजिंग। एनोडाइजिंग में क्या यूज़ होता है? अ प्रोटेक्टिव लेयर इज फॉर्म्ड नेचुरली ऑन द सर्फेस ऑफ एल्यूमिनियम मेटल by reaction with oxygen in air। तो यहाँ पे in this process a layer can made of a desired thickness। Anodizing is done by electrolysis। यहाँ पे देखो एसिड इलेक्ट्रोड है, इलेक्ट्रोलाइट, तो यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड यूज होता है। डाइल्यूट एसिड इज टेकन इन द इलेक्ट्रोलाइट सेल एंड द एल्यूमिनियम आर्टिकल इज डिप्ड इन इट। यहाँ पे यू कैन सी, ओके, आर्टिकल को डिप्ड करते हैं इन इट एज द एनोड। When the electric current is passed, hydrogen gas is released at the cathode and oxygen जो है वो एनोड पे रिलीज होती है एंड हाइड्रोजन कहाँ पे रिलीज होती है? कैथोड पे। ठीक है, सो दिस इज ऑल्सो वेरी यूजफुल मेथड। ओके, दिस लेयर कैन बी मेड अट्रैक्टिव बाय एडिंग द कलर इन द सेल ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस। जैसे कि यहाँ पे डिफरेंट कलर से ऐड हुआ है, रेड कलर, तो वैसे कलर ऐड करते हैं। ओके, we use anodizing cooking utensils like cradles and cookers। why? क्यों यूज़ करते हैं? सो दैट जब भी हाई टेम्परेचर हो तब उसमें कोई इफ़ेक्ट नहीं हो जाए। ठीक है, देन सिरेमिक। सिरेमिक इज़ अ हीट रेजिस्टेंट सब्सटेंस फॉर्म्ड बाय kneading an inorganic substance in water and then shaping it and hardening it by heating। जैसे कि अगर किसी ने देखा होगा कि पॉट कैसे बनाते हैं, अगर पॉट मेड बाय पॉटर कैसे बनाते हैं? पहले उसको शेप देते हैं, फिर उसको कुछ काइंड ऑफ हीटिंग करते हैं, कूलिंग करते हैं। ओके, उसका जो प्रोसेस रहता है। ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन, ब्रिक्स, पॉटरी, ओके, आर्टिकल्स, दिस आर द सम एग्जाम्पल्स ऑफ कॉमन सिरेमिक आर्टिकल दैट वी सी अराउंड। तो सिरेमिक मतलब क्या है? ऐसे पॉट्स और ये जो डेकोरेटिव थिंग्स हैं वो कैसे यूज़ करते हैं। ठीक है, now porcelain, this is hard, transparent and white color ceramic। it is made by using white clay called kaolin found in China। okay, glass, granite other materials are mixed with kaolin and knead with water। यहाँ पे देखो पोर्सेलिन वेसल्स, ये जो वेसल्स है ऐसे ये वेसल्स यूज़ करते हैं लेबोरेटरी में। इसके ग्रेनाइट भी होते हैं, हम जो टाइल्स यूज़ करते हैं वो भी पोर्सेलिन के मेड हुए बनाए हुए होते हैं। बोन चाइना इज़ मेड बाय एडिंग सम ऐश ऑफ एनिमल बोन्स इन द मिक्सचर ऑफ चाइना क्ले। तो बेसिकली यहाँ पे क्ले यूज़ होता है। क्ले तो सबने देखा है, यस, तो वो यहाँ पे यूज़ होता है
एंड एडवांस सिरेमिक्स में ऑक्साइड्स लाइक एल्यूमिना, जिरकोनिया, सिलिका एंड अदर कंपाउंड्स लाइक सिलिकॉन कार्बाइड, ओके, दे आर यूज्ड इंस्टेड ऑफ क्ले फॉर मेकिंग सिरेमिक। तो इसमें कौन सा यूज़ होता है, ये ऑक्साइड्स यूज़ होते हैं और यहाँ पे क्ले यूज़ करते हैं, ठीक है, ओके। सो यहाँ पे कुछ टेम्परेचर होता है जिसमें we have to give them the temperature, and this process is called as sintering. This ceramic requires a temperature of 1600 to 1800 degrees Celsius and an oxygen free atmosphere for firing. So this process is called as sintering, ठीक है। So today we have seen the different kinds of methods, okay, different kinds of methods we have seen, powder coating and so on, and we have seen the different colors, artificial colors, we have to avoid that, okay. Yes, we have seen a very nice topic, dye. Please go through it and study well. Thank you.